call is now being recorded. Hello, welcome back once again in microcontrollers and application subject. So we are in the first chapter of this particular subject, basics of microprocessor and 8051 microcontroller. And in our last lecture, we have completed the topic of architecture of 8051 microcontroller. Now today's learning objective is explain Boolean processor, power saving options, idle and power down mode. So in the end of today's lecture, you must be able to give the answer of this question. Describe the power saving modes of 8051 microcontroller. Now, what are the contents of today's lecture? First, we are going to understand what do you mean by Boolean processor and what are the instructions involved in Boolean, that is Boolean instructions, and what are the advantage of Boolean processor. Then we are going to move towards power saving options. The two power saving options available with 8051 microcontrollers are idle and power down mode, and the register which is used for supporting this particular power saving options is PCON register. So we are going to see the format of this PCON register, power control register, and in the end we are going to see need of power saving options, why power saving options is required. So these all are the contents. First we are going to see what do you mean by Boolean processor. So it is a concept map. This is the concept map. Concept map explaining you power saving option is of two types, idle mode and power down mode in 8051 microcontroller. So first we are going to see and understand what is Boolean processor. If you remember when we are comparing the microprocessor and microcontroller part, so I have told you the Boolean operation is possible in 8051 microcontroller and Boolean operation is not possible in microprocessor. So in microcontroller, Boolean operation is possible. What do you mean by Boolean operation? Boolean operation is nothing but the operation which is performed on a single bit. ओके, तो आप लोगों को बात समझ में आ रही है? क्या बोल रहा हूँ, बुलियन ऑपरेशन उसे कहते हैं जो ऑपरेशन आप एक सिंगल बिट के ऊपर भी कर सकते हो, सिंगल बिट। तो इंडिविजुअल बिट, सिंगल बिट के ऊपर ऑपरेशन पूरा परफॉर्म करने को बोलते हैं बुलियन ऑपरेशन। तो उसके लिए बुलियन प्रोसेसर होना चाहिए, उस टाइप का प्रोसेसर भी होना चाहिए जो ये चीज़ को सपोर्ट करे, और उससे रिलेटेड, उसके रिलेटेड बुलियन इंस्ट्रक्शंस भी होना चाहिए जो ये बुलियन ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हो। तो ये सारी चीज़ हम लोग को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर्स जो है वो बुलियन ऑपरेशंस को क्या करते हैं, पॉसिबल है उनमें, और माइक्रो कंट्रोलर में बुलियन ऑपरेशंस पॉसिबल है, माइक्रो प्रोसेसर में बुलियन ऑपरेशंस पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे आपको पूरे की पूरा डेटा का ऑपरेशंस परफॉर्म करना होता है। एक सिंगल बिट के ऊपर भी काम है तो पूरे आपको 8 बिट डेटा के ऊपर काम करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, माइक्रो कंट्रोलर में आप डायरेक्टली एक इंडिविजुअल बिट के ऊपर भी आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कोई बिट को आपको ऑन करना है, सेट करना है तो सेट कर सकते हो, रीसेट करना है, जीरो करना है उसको, तो उसको इंडिविजुअल उस बिट को रीसेट कर सकते हो विदाउट चेंजिंग द डेटा ऑफ रिमेनिंग बिट्स। जैसा कि आपको पता है एक पर्टिकुलर रजिस्टर में 8 बिट होते हैं, तो उस रजिस्टर की 8 बिट में से अगर कोई एक सिंगल बिट के ऊपर आपको काम है, सिर्फ उसको ही ऑन करना है, उसको ही सेट करना है, तो आप सिर्फ उस बिट के ऊपर भी जाके उसको ऑन कर सकते हो विदाउट चेंजिंग द डेटा ऑफ द रिमेनिंग बिट्स ऑफ दैट रजिस्टर। तो इसके लिए ये बुलियन ऑपरेशंस का होना ज़रूरी भी है, और ये बुलियन ऑपरेशंस आपको माइक्रो कंट्रोलर में मिलेगा। तो इन 8051 it is supporting boolean instruction, boolean operations. So first we are going to understand what is boolean processor. तो boolean processor क्या है, यहाँ पे वही चीज़ आपको एक्सप्लेन किया हुआ दिखाई देगा। It is often required to deal with bits not bytes in the real world, typically for the control of on और off system। पहले तो ये आपको समझाया, इधर पे एक बैकग्राउंड बताया कि ये हमको अक्सर रिक्वायर्ड होता है कि हम लोग एक सिंगल बिट के ऊपर ऑपरेशन को परफॉर्म करें विदाउट चेंजिंग द डेटा ऑफ द रिमेनिंग बिट्स। तो एक सिंगल बिट के ऊपर डील करने के लिए भी कभी कभी हम लोग को ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि यहाँ पे कंट्रोलिंग के लिए बताया गया कि कोई चीज़ को ऑन और ऑफ करने के लिए, कोई चीज़ कंट्रोल करने के लिए आपको ऑन और ऑफ करना है, तो वहाँ पे आपको सिंगल बिट के ऊपर डील करने की ज़रूरत पड़ती है। उस पर्टिकुलर बिट को ऑन या ऑफ करना, यानी 1 और 0 करने की ज़रूरत पड़ती है। फॉर सच कंट्रोल सिचुएशंस, माइक्रो कंट्रोल 8051 हैज़ स्पेशल फीचर्स रिफर टू एज बुलियन प्रोसेसर। तो ऐसे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, ऐसी सिचुएशन में कंट्रोल करने के लिए माइक्रो कंट्रोल 8051 में स्पेशल फीचर्स है। वो स्पेशल फीचर्स का नाम क्या है, बुलियन प्रोसेसर।
So what is Boolean processor? Boolean processor is an integral part of 8051 architecture. It is independent bit processor with its own instruction set, its own accumulator that is carry flag and its own bit addressable RAM and input output. तो यहाँ पे क्या बताया, ये बुलियन प्रोसेसर के बारे में आपको क्या पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। बुलियन प्रोसेसर भी एक इंटीग्रल पार्ट है 8051 आर्किटेक्चर का। 8051 आर्किटेक्चर जो हम लोग ने डिटेल डायग्राम देखे, बुलियन प्रोसेसर भी उसका ही इंटीग्रल पार्ट है, उसी का पार्ट है। और ये इंडिपेंडेंट प्रोसेसर है। इंडिपेंडेंट प्रोसेसर का मतलब क्या है, इसका खुद का सेपरेट अपना रजिस्टर है। जो एक्यूमुलेटर आपको लगता है, जो हम लोग ने लास्ट आर्किटेक्चर में देखे थे, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जो आपका प्रोसेसर होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ऑपरेशन परफॉर्म करता है, उसके लिए जो रजिस्टर खास जो यूज होता है वो कौन सा यूज होता है, एक्यूमुलेटर। यानी कोई भी आपको अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो उसमें दो डेटा में से एक डेटा का कहाँ पे होना जरूरी है, एक्यूमुलेटर में होना जरूरी है। जो एक्यूमुलेटर 8 बिट का रजिस्टर था जो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखे थे, तो उसी तरीके से बुलियन प्रोसेसर में बुलियन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो सिंगल बिट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होता है, उसमें भी आप सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। चाहे आपको एडिशन करना हो, चाहे आपको लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, तो एक सिंगल बिट के ऊपर भी सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन उस केस में उसका खुद का अलग से प्रोसेसर होगा, उसका खुद का अलग से एक्यूमुलेटर के जैसा रजिस्टर होगा। तो एक्यूमुलेटर के जैसा रजिस्टर बुलियन प्रोसेसर में कौन सा होता है, जिसका स्पेसिफाई किया हो यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कैरी फ्लैग। जो हम लोग फ्लैग रजिस्टर का जो कैरी फ्लैग देखे थे PSW स्टेटस में, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड जो फॉर्मेट लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखे थे, उसमें से जो D7 बिट है वो कौन सा बिट है, कैरी फ्लैग है। तो वो कैरी फ्लैग किसके जैसा काम करेगा, एक्यूमुलेटर के जैसा काम करेगा। कौन से ऑपरेशन में, बुलियन ऑपरेशन में। तो इन बुलियन प्रोसेसर द कैरी फ्लैग बिट इज एक्टिंग जस्ट लाइक अ एक्यूमुलेटर इन नॉर्मल 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो नॉर्मल 8051 माइक्रो कंट्रोलर में जिस तरीके से एक्यूमुलेटर काम करता है, पूरा 8 बिट का डेटा उसमें स्टोर होता है, एडिशन करने के लिए, सब्ट्रैक्शन करने के लिए एक डेटा आपका एक्यूमुलेटर में होना जरूरी है। उसी तरीके से बुलियन ऑपरेशन में बुलियन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो एक बिट का डेटा आपका कहाँ पे होना जरूरी है, कैरी फ्लैग में होना जरूरी है। तो कैरी फ्लैग जो है वो किसके जैसा काम करता है, एक्यूमुलेटर के जैसा काम करता है इन बुलियन ऑपरेशन, इन बुलियन प्रोसेसर। और बुलियन प्रोसेसर में उसका खुद का ओन बिट एड्रेसेबल रैम है, इनपुट आउटपुट सेक्शन है। तो ये सारा सब चीज, इसका बिट एड्रेसेबल एरिया भी आपको दिखेगा रैम के सेक्शन में। रैंडम एक्सेस मेमोरी के सेक्शन में आपको अलग से एक एरिया दिखेगा जिसका स्पेसिफाई किया हुआ रहेगा बिट एड्रेसेबल एरिया, जहाँ पे सिर्फ आप बिट ऑपरेशंस को एड्रेस करते हो। ऐसे इंस्ट्रक्शन जो होंगे जो सिर्फ बिट एड्रेसेबल वाले होंगे, बुलियन ऑपरेशन वाले होंगे। तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर आर्किटेक्चर में पूरा अलग से आपका एक सेक्शन मिलेगा, बुलियन प्रोसेसर दिखेगा। बुलियन प्रोसेसर से रिलेटेड उसका खुद का रजिस्टर जो है वो कैरी फ्लैग होगा। रजिस्टर नहीं मतलब एक रजिस्टर के जैसा जो काम करने वाला, बिहेव करने वाला, एक्यूमुलेटर के जैसा बिहेव करने वाला जो बिट होगा, वो कौन सा बिट होगा, कैरी फ्लैग बिट होगा। और इसका खुद का अलग से स्पेसिफाइड एड्रेस होगा रैम मेमोरी में। इसका खुद से अलग से सेक्शन दिया हुआ है, कितना एरिया बिट एड्रेसेबल एरिया है, ये सारी चीज़ अलग से स्पेसिफाई की हुई है। अब मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन बता दूं जो बुलियन इंस्ट्रक्शंस है, बुलियन इंस्ट्रक्शंस को जिनको कहा जाता है, जो सिंगल बिट के ऊपर काम करते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस है। नो डाउट हम लोग अलग से आगे चल के पूरा इंस्ट्रक्शन सेट पूरा देखेंगे, तो उसमें बुलियन इंस्ट्रक्शन भी है। लेकिन अभी यहाँ पे बुलियन प्रोसेसर की बात चल रही है, बुलियन ऑपरेशंस की बात चल रही है। तो वो इंस्ट्रक्शंस जो सिंगल बिट के ऊपर काम करते हैं, सिंगल बिट के ऊपर वर्क करते हैं, वो स्पेसिफाई किया हुआ है। तो बुलियन इंस्ट्रक्शंस आर 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट लॉन्ग, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट फंक्शन दे परफॉर्म। तो बुलियन इंस्ट्रक्शन भी, उनकी भी जो लेंथ है वो कितने बाइट की होती है। कोई इंस्ट्रक्शन 1 बाइट का होता है, कोई इंस्ट्रक्शन 2 बाइट का होता है, कोई इंस्ट्रक्शन 3 बाइट का होता है। ना व्हाट डू मीन बाय 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट। ये 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट का मतलब क्या है, यानी वो इंस्ट्रक्शन अपने मेमोरी में एग्जीक्यूट होने के लिए कितनी जगह ले रहा है, उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, तो वो इंस्ट्रक्शन जो आपने लिखे वो कितने मेमोरी स्पेस में एग्जीक्यूट होने वाला है, यानी मेमोरी लोकेशंस कितने लेगा। एक मेमोरी लोकेशन कितने बिट का होता है, 8 बिट का होता है, 1 बाइट का होता है। तो हाउ मेनी मेमोरी लोकेशन इट इज गोइंग टू बी एक्वायर फॉर कंप्लीटिंग द इंस्ट्रक्शन। कोई एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन मेमोरी में कितनी जगह लेता है, उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन। सो लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो अलग अलग होती है। कोई 1 बाइट का ही होता है, कोई 2 बाइट का ही होता है, कोई 3 बाइट का होता है। 1 बाइट का मतलब सिर्फ मेमोरी में 1 बाइट की डेटा लेगा वो,
फिर 2 बाइट का मतलब वो मेमोरी में कितनी बाइट की डेटा लेगा, कितनी बाइट की जगह लेगा, 2 बाइट की जगह लेगा। और 3 बाइट का मतलब वो इंस्ट्रक्शन जो मेमोरी स्पेस पे कितनी जगह लेने वाले, 3 बाइट की जगह लेने वाले। तो 3 मशीन साइकिल में वो एग्जीक्यूट होंगे। तो इस तरीके से ये सब अलग अलग लेंथ होती है। फिलहाल अभी हम लोग को ये अंडरस्टैंड करना है कि वो बूलियन इंस्ट्रक्शंस कौन कौन से हैं। तो जिसमें से सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन यहाँ पे एक नज़र आ रहा है, CLRC। नाउ ये इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है, बाजू में आपको स्पेसिफाई भी किया हुआ है। CLR स्टैंड फॉर क्लियर। CLR स्टैंड फॉर क्या करने के लिए, क्लियर करने के लिए। नाउ क्लियर किसको कर रहा है, बाजू में C लिखा हुआ है, तो दिस C स्टैंड फॉर कैरी फ्लैग। तो यानी ये इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो क्या करेगा, जो आपकी कैरी फ्लैग बिट है उसको क्लियर कर देगा। तो कैरी फ्लैग बिट को क्लियर कर देगा मतलब क्या, कैरी फ्लैग बिट अगर पहले से सेट है तो उसको 0 कर देगा, रीसेट कर देगा, और अगर पहले से भी 0 है तो उसको 0 ही रखेगा। तो कैरी फ्लैग बिट अगर वो पहले से सेट होगी तो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होकर उसको क्या कर देगा, रीसेट कर देगा, 0 कर देगा। तो दिस इंस्ट्रक्शन इज परफॉर्मिंग अ सिंगल बिट ऑपरेशन। तो ये इंस्ट्रक्शन जो है वो एक सिंगल बिट के ऊपर काम कर रहा है, और वो सिंगल बिट क्या है, कैरी फ्लैग को क्या कर रहा है, रीसेट कर रहा है। उसी तरीके से जो नीचे का इंस्ट्रक्शन आपको दिख रहा है, CLR बिट। तो CLR बिट स्टैंड फॉर व्हाट, क्लियर द बिट। बिट मतलब अब यहाँ पे बिट, यहाँ पे खाली ऐसा जनरलाइज लिख दिया गया है। अब यहाँ पे आप जो बिट का एड्रेस लिखोगे या नाम लिखोगे, उस पर्टिकुलर बिट को वो क्या करेगा, क्लियर करेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं समझा दूं, मैं अगर इस तरह के लिखता CLR P1.0, अब यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया होता, जो बिट को मुझे क्लियर करना है उसका मैं नाम लिख दिया होता। उसका नाम जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया P1.0। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, P1.0 का मतलब क्या हो रहा है, यानी ये इंस्ट्रक्शन पोर्ट 1 की 0 बिट को क्लियर कर देगा। पूरी पोर्ट 1 की बिट की बात ही नहीं चलती है, सिर्फ पोर्ट 1 की कौन सी वाली बिट, 0 वाली बिट, पहली वाली बिट। सो P1.0 जहाँ लिख दिया, तो P1.0 लिखने का मतलब ये हुआ कि ये इंस्ट्रक्शन पोर्ट 1 की जो पहली बिट है, जो 0 बिट है, उसको क्या कर देगा, क्लियर कर देगा, रीसेट कर देगा, अगर वो पहले से सेट होगी तो। अगर नहीं भी रहेगी, 0 है तो 0 ही रखेगा उसको। तो ऑल ऑफ यू गेटिंग, यहाँ पे बिट का मतलब नेम, नेम ऑफ द बिट, विच बिट यू वांट टू क्लियर। तो आप इधर पे उस नाम लिखो, उस पर्टिकुलर बिट का नाम लिखो और उसको क्लियर करो। उसी तरीके से सेट का भी इंस्ट्रक्शन है, जैसे क्लियर का है वैसे सेट करने का भी है। तो सेट बीट डायरेक्ट, इसका फुल फॉर्म क्या है, SETB का सेट बीट। तो किसको सेट करना है, कैरी फ्लैग को। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, कैरी फ्लैग को सेट कर देगा। अगर पहले से 0 है तो ये कैरी फ्लैग बिट को क्या कर देगा, सेट कर देगा। तो ये C स्टैंड फॉर क्या है, कैरी फ्लैग। तो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो किसको सेट कर देगा, कैरी फ्लैग को सेट कर देगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखो, सेट बिट बिट, सेट बिट बिट, बिट का मतलब क्या, यहाँ पे उस बिट का नाम लिखो जिस बिट को आप सेट करना चाहते हो। जैसे मैंने यहाँ पे पोर्ट 1.0 बोला था, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ P3.4, P3.4, सेट बिट P3.4। तो P3.4 का मतलब क्या हो गया, पोर्ट 3 की 4th वाली बिट को सेट कर देगा। तो ये इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो पोर्ट 3 की 4th वाली बिट वो क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। ओके, तो सिर्फ इंडिविजुअल बिट के ऊपर ये क्या हो रहा है, काम हो रहा है। ये इंस्ट्रक्शन सिर्फ एक इंडिविजुअल बिट को क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं, रीसेट कर रहे हैं, जो आप काम कराना चाहते हो वो काम कर रहे हैं। तो अभी तक तो हम लोग ने सिर्फ सेट और रीसेट देखे, सेट और क्लियर देखे। इसके अलावा भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस आप परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि आपको एक इधर पे एक नीचे इंस्ट्रक्शन दिख रहा है CPLC। CPL का यहाँ पे फुल फॉर्म दिया हुआ है कॉम्प्लीमेंट कैरी फ्लैग। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का तो मीनिंग आपको पता ही है, कॉम्प्लीमेंट मतलब इन्वर्टर। अगर वो पहले से 1 है तो 1 का क्या करेगा, 0, 0 है तो 0 का क्या कर देगा, 1। तो CPL कैरी फ्लैग, तो कैरी फ्लैग को क्या कर देगा, कॉम्प्लीमेंट कर देगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, अगर वो 1 थी तो उसको क्या कर देगा, 0, अगर 0 थी तो उसको क्या कर देगा, 1। तो दिस इंस्ट्रक्शन इज गोइंग टू कॉम्प्लीमेंट कैरी फ्लैग। उसी तरीके से CPL बिट, बिट का मतलब ये होता है कि जो नाम आप यहाँ पे लिखोगे उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो आप नाम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, P2.7 लिख दिया मैंने, P2.7। तो P2.7 का मतलब क्या हो गया, पोर्ट 2 की 7th वाली बिट को कॉम्प्लीमेंट करेगा। सो पोर्ट 2 की 7 वाली बिट, तो पोर्ट 2 की 7 वाली बिट अगर पहले से सेट थी तो उसको क्या करेगा, रीसेट कर देगा, 0 थी तो उसको 1 कर देगा। तो इट इज इन दिस वे, ये सारे क्या है, ये सिंगल बाइट के इंस्ट्रक्शन है, 1 बाइट, एक ही मतलब मेमोरी में एक ही जगह लेते हैं लोग, 1 बाइट की लेंथ वाले इंस्ट्रक्शन है। ये बूलियन इंस्ट्रक्शन कितने लेंथ वाले, 1 बाइट। इट इज नॉट टेकिंग 2 बाइट इन द मेमोरी लोकेशन। ये सारे सिर्फ एक ही लाइन में, एक ही मेमोरी में अपना जगह में ये खत्म हो जाते हैं, एग्जीक्यूट हो जाते हैं।
So that's why these instructions are all Boolean instructions. And what is the length of this instruction? 1 byte लेंथ के instructions है. आगे बढ़ते कुछ और भी इंस्ट्रक्शंस बताता हूँ मैं आपको, जिससे और क्लियर होगा. जैसे कि ये सब लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस वाले हैं. अब लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस वाले देखिए, जरा ध्यान से देखो. पहला इंस्ट्रक्शन आपके सामने क्या आ रहा है? ANL-C, बिट. नाउ ANL-C, बिट का मतलब क्या है? ये ANL किसके लिए यूज होता है? ANL स्टैंड फॉर एंड लॉजिक. जो लॉजिकल ऑपरेशन की बात कर रहा था मैंने, लॉजिकल ऑपरेशन आप कौन कौन से फॉर्म परफॉर्म कर सकते हो? एंड लॉजिक कर सकते हो, और लॉजिक कर सकते हो, बहुत सारे कर सकते हो. तो यहाँ पे ANL स्टैंड फॉर एंड लॉजिक. तो एंड लॉजिक किसके बीच में करना है? तो एंड लॉजिक करना है आपको एक कैरी फ्लैग और बाजू में अगर जो बिट का नाम दिया हुआ है उसका. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ANL-C, बिट, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ANL-C, P2.5. ANL-C, P2.5 मतलब क्या हो गया? ये इंस्ट्रक्शन एंड लॉजिक परफॉर्म करेगा किसके किसके बीच में? कैरी फ्लैग के बीच में, और जो मैंने नाम दिया यहाँ पे P2.5 बोल रहा हूँ, तो पोर्ट 2 की 5th बिट को. तो पोर्ट 2 की 5th बिट जो भी डेटा रहेगा वो, और कैरी फ्लैग जो भी रहेगा, उन दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा? एंड लॉजिक परफॉर्म होगा. और एंड लॉजिक परफॉर्म होने के बाद जो रिजल्ट है वो आपको कहाँ पे दिखेगा? उसका रिजल्ट आपको कैरी फ्लैग में दिखेगा. तो इसीलिए मैं आपको यही बता रहा था, जो हम लोग की स्लाइड में पहला जो लिखा हुआ था कि बुलियन ऑपरेशंस में, बुलियन प्रोसेसर में कैरी फ्लैग किसके जैसा काम करता है? एक्यूमुलेटर के जैसा काम करता है. जिस तरीके से नॉर्मल ऑपरेशन में एक डेटा आपका एक्यूमुलेटर में होना जरूरी है, और जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसका रिजल्ट भी आपको कहाँ पे दिखता है? एक्यूमुलेटर में दिखता है. उसी तरीके से बुलियन ऑपरेशंस में आपका एक बिट का डेटा, जो भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना हो, वो होना कहाँ पे जरूरी है? कैरी फ्लैग में. तो कैरी फ्लैग में एक बिट का डेटा होना जरूरी है, दोनों के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और जो उसका रिजल्ट भी है वो आपको कहाँ पे मिलेगा? कैरी फ्लैग में मिलेगा. तो इसके लिए कैरी फ्लैग जो है वो एक्यूमुलेटर के जैसा काम करता है इन बुलियन ऑपरेशन, बुलियन प्रोसेसर. वेरी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है. तो बुलियन ऑपरेशन में कैरी फ्लैग इज एक्टिंग लाइक अ एक्यूमुलेटर. तो ये ANL बात हो गई, एंड लॉजिक की बात हो गई. अब यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल बिट था, ये बैक स्लैश लगा के लिखा हुआ है. तो बैक स्लैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, यानी जो बिट आप लिख रहे हो उसका कॉम्प्लीमेंट करके एंड लॉजिक होगा कैरी फ्लैग के साथ में. ORL स्टैंड फॉर और लॉजिक. ORLC स्टैंड फॉर ORLC, बैक स्लैश बिट. तो बैक स्लैश लगाने का मतलब क्या हो रहा है? आप ऑलरेडी उसको कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हो. जो बिट का आप एड्रेस लिख रहे हो, जो बिट का नाम लिख रहे हो, उसका कॉम्प्लीमेंट होके और लॉजिक होगा कैरी फ्लैग के साथ में. मूव C, बिट. तो मूव C, बिट का मतलब क्या होता है? यानी ये जो राइट साइड में जो भी आपने नाम लिखे हो, उस नाम वाली बिट का जो भी डेटा रहेगा, स्टेटस रहेगा, वो कैरी फ्लैग में मूव हो जाएगा. हमेशा यहाँ से राइट टू लेफ्ट होता है. सोर्स इज ऑलवेज इन द राइट एंड डेस्टिनेशन इज ऑलवेज इन द लेफ्ट. तो इस तरीके से डेटा हमेशा मूव होता है. हम लोग लिखते हैं ऐसा है मूव C, बिट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि कैरी फ्लैग से वहां पे जा रहा है. इसका मतलब हमेशा ये होता है जो राइट साइड की जो बिट है उसका डेटा कहाँ पे कॉपी होगा? C में जाएगा, कैरी फ्लैग में जाएगा. अब ये इंस्ट्रक्शन में क्या होगा? मूव कैरी फ्लैग टू बिट, यानी जो कैरी फ्लैग में जो भी स्टेटस होगा, जो डेटा होगा, कंटेंट होगा, वो कहाँ पे मूव होगा? बिट में मूव होगा, जिसका नाम आप यहाँ पे लिखोगे. तो ये इंस्ट्रक्शन जो थे वो कितने लेंथ के थे? 2 बाइट के इंस्ट्रक्शन थे. यानी मेमोरी में कितनी जगह लेते हैं इन लोग? 2 बाइट की लेंथ लेते हैं, 2 बाइट की जगह लेते हैं. अब आगे चलते हैं और भी बिट ऑपरेशन के ऊपर, बुलियन इंस्ट्रक्शन के ऊपर. 3 बाइट वाले इंस्ट्रक्शन. तो 3 बाइट वाले इंस्ट्रक्शन हमेशा वो जंप वाले होते हैं, जहाँ पे आपको डायरेक्टली मेमोरी में कहीं दूसरी जगह पे जंप करना हो. तो वो यहाँ पे दिया हुआ है विद कंडीशन. ये कुछ कंडीशन वाले इंस्ट्रक्शन है, जिसमें यहाँ पे दिया हुआ है जंप इफ नॉट बिट. जंप इफ नॉट बिट, कॉमा बाजू में नाम लिखा हुआ बिट. यानी ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा? जंप करेगा अगर वो बिट सेट नहीं है. कौन सी बिट सेट नहीं है? जिसका नाम आपने लिखे हो. तो जो भी आपने बिट का नाम यहाँ पे लिखे हुए रहोगे, जो भी बिट आपका इसका नाम स्पेसिफाई करोगे, जैसे मैं लिख दूँ P2.1, तो पोर्ट 2 की फर्स्ट बिट अगर 1 नहीं रहेगी तो क्या करेगा? जंप इफ नॉट बिट. तो वो जंप नहीं करेगा. कब जंप करेगा? जब वो सेट रहेगी, 1 रहेगा. तो ये कुछ ऐसे कंडीशन वाले इंस्ट्रक्शन है. तो कंडीशन वाले इंस्ट्रक्शन हमेशा हम लोग को जहाँ पे जंप कराना है उसका एड्रेस लिखना पड़ता है. तो ये बाजू में रिलेटिव आपको दिख रहा है, तो ये रिलेटिव यानी उस पता का नाम है जहाँ पे आपको जंप कराना है, वो मेमोरी में कौन सी दूसरी जगह पे आपको जाने का है. तो इसके लिए जंप इंस्ट्रक्शन 3 बाइट के हमेशा होते हैं. क्यों 3 बाइट के होते हैं? क्योंकि 2 बाइट तो हमेशा वो मेमोरी के एड्रेस का ही हो जाता है. मेमोरी का एड्रेस का ही 2 बाइट कवर हो जाता है. और एक तीसरा यहाँ पे,
क्योंकि हमेशा आपको इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाई करना है ना कहाँ पे आपको जंप करना है। ये इंस्ट्रक्शन ऐसे है जो जंप करेंगे अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो यहाँ पे जंप इफ नॉट बिट करके लिखा हुआ है कि जंप करना कब, जब वो बिट नहीं रहेगा, सेट नहीं रहेगा। तो बिट नॉट सेट तो वो जंप करेगा, कहाँ पे जंप करेगा, जहाँ पे आपने एड्रेस मेंशन किया हो। तो ये एड्रेस ऑल्सो पार्ट ऑफ अ इंस्ट्रक्शन, तो दैट्स व्हाई इट बिकम 3 बाइट इंस्ट्रक्शन, 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन बन जाता है। जंप इफ बिट, जंप इफ बिट का मतलब क्या होता है, जेबी मतलब जंप इफ बिट, अगर वो बिट सेट है तो जंप करो, नहीं सेट है तो मत जंप करो, आगे बढ़ो। ये सब कंडीशन वाले इंस्ट्रक्शन है। जेबीसी, जंप इफ बिट एंड क्लियर द बिट, जंप इफ बिट इज सेट एंड क्लियर बिट, यानी जंप करो अगर वो बिट सेट है और जंप करने के बाद उसको तुरंत क्लियर भी करो। ये इंस्ट्रक्शन इस तरीके से परफॉर्म करेगा। जंप इफ बिट एंड क्लियर, जेबीसी का फुल फॉर्म है जंप इफ बिट एंड क्लियर, यानी वो पर्टिकुलर बिट अगर सेट है तो जंप करो, और जब जंप करो तो उसको क्लियर भी कर दो, साथ में ऑटोमेटिक क्लियर भी कर दो। तो ये सारे जो इंस्ट्रक्शन है ना, कुछ कंडीशन वाले इंस्ट्रक्शन है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन हम लोग और भी अच्छी तरीके से देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे टॉपिक इसका था कि बिट ऑपरेशन के ऊपर परफॉर्म करते हैं, तो सिंगल बिट को चेक करते हुए, कंडीशन को देखते हुए ये यूज हो रहा है। तो ऑल दिस आर कम्स अंडर द बुलियन इंस्ट्रक्शंस आल्सो। तो ये बुलियन इंस्ट्रक्शंस में आते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बुलियन प्रोसेसर, क्या एडवांटेजेस है बुलियन प्रोसेसर के, तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई किया हुआ है। इट कैन कंट्रोल इंडिविजुअल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस साइमल्टेनियसली विदाउट अफेक्टिंग अदर्स। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं इंडिविजुअली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जो इनपुट आउटपुट पोर्ट से इंडिविजुअल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड है, तो साइमल्टेनियसली हम लोग दूसरे डिवाइसेस को अफेक्ट ना करते हुए हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कोई सिंगल बिट के ऊपर कोई डिवाइसेस कनेक्टेड है जिनको ऑन और ऑफ करना है, तो विदाउट हैंडलिंग, विदाउट अफेक्टिंग द अदर ऑपरेशन, दूसरे डिवाइसेस को ना छेड़ते हुए हम लोग उस पर्टिकुलर डिवाइसेस को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको ऑन और ऑफ करना हुआ, ऑन करना हुआ, ऑफ करना हुआ। तो ये बुलियन का ये फायदा है, आप सिंगल बिट के ऊपर काम कर सकते हो। इट कैन मैनिपुलेट सिंगल बिट फ्लैग और स्पेसिफिक एप्लीकेशंस। तो हम लोग सिंगल बिट को क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, सिंगल फ्लैग को चेंज कर सकते हैं। जो स्पेसिफिक एप्लीकेशन है, कुछ भी आपका स्पेसिफिक एप्लीकेशन हो, अगर सिर्फ स्पेसिफिक एप्लीकेशन में सिंगल बिट का ही काम है, आपको उसको ही सिर्फ ऑन और ऑफ करना है, उसको ही सेट रीसेट करना है, तो यहाँ पे बहुत फायदा होता है कि आप सिर्फ सिंगल बिट को क्या करो, वहाँ पे ऑन और ऑफ कर दो। तो स्पेसिफिक एप्लीकेशन के हिसाब से आप सिंगल बिट को मैनिपुलेट कर सकते हो, उसका डेटा चेंज कर सकते हो। इट कैन परफॉर्म सिंगल बिट लॉजिकल ऑपरेशन ऑल्सो, जैसे कि अभी मैं एग्जांपल्स दिखा रहा था, कितने सारे लॉजिकल ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हो सिंगल बिट के ऊपर, एंड लॉजिक, और लॉजिक, कॉम्प्लीमेंट, और कितने सारे ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हो। तो लॉजिकल ऑपरेशन भी आप सिंगल बिट के ऊपर कर सकते हो। ये चीज़ आपको लॉजिकल ऑपरेशन अगर परफॉर्म करना होता है ना माइक्रो प्रोसेसर में, तो आपको अगर सिंगल बिट को भी सेट करना है, रीसेट करना है, तो वहाँ पे पूरा पूरा की पूरा 8 बिट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। वहाँ पे बुलियन इंस्ट्रक्शन है ही नहीं माइक्रो प्रोसेसर में। माइक्रो प्रोसेसर डज नॉट सपोर्ट सिंगल बिट ऑपरेशन। तो ये बेनिफिट है आपके माइक्रो कंट्रोलर में कि माइक्रो कंट्रोलर में आप सिंगल बिट के ऊपर परफॉर्म कर सकते हो। तो इसके लिए यहाँ पे स्पेसिफाई किया अलग से एडवांटेज, इट कैन परफॉर्म सिंगल बिट लॉजिकल ऑपरेशंस ऑल्सो। जैसे कि अभी हम लोग एग्जांपल देख रहे थे, कितने सारे एंड लॉजिक, और लॉजिक, ये सब लॉजिकल्स ऑपरेशन है जो हम लोग सिंगल बिट के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। दिस ऑल आर द एडवांटेज। लास्ट एडवांटेज यहाँ पे दिया हुआ है, यूजिंग बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन रिड्यूसेस मेमोरी ऑक्यूपाइड एज साइज ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन इज लेस। समझ में आ रही बात। तो बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन को यूज करके मेमोरी की साइज में क्या होती है, मेमोरी ऑक्यूपेशन की साइज में क्या होती है, कमी होती है, बिकॉज इंस्ट्रक्शन की साइज लेस हो जाती है। इंस्ट्रक्शन की साइज मैं वही बता रहा था, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन, यानी मेमोरी में कितने बाइट लेता है। तो बुलियन इंस्ट्रक्शन को यूज करके नंबर ऑफ साइज ऑफ द मेमोरी ऑक्यूपाइड इज गोइंग टू बी लेस। तो जो ऑक्यूपेंसी ऑफ इंस्ट्रक्शन साइज है मेमोरी में, वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है बुलियन इंस्ट्रक्शन को यूज करके। तो दिस ऑल आर द एडवांटेजेस ऑफ योर बुलियन प्रोसेसर। तो ये सारे एडवांटेजेस है। नाउ द क्वेश्चन इज टू अटेम्प्ट द एमसीक्यू सेट 1। सो एमसीक्यू सेट 1 आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, पहला क्वेश्चन यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, बुलियन प्रोसेसर इज एन डैश बिट प्रोसेसर। तो कौन जवाब देगा इसका, ऑप्शंस क्या क्या दिया हुआ है। बुलियन प्रोसेसर जो है इज एन डैश बिट प्रोसेसर, डिपेंडेंट है, कॉम्प्लेक्स है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, ऑप्शन इंडिपेंडेंट। सी। वेरी गुड।
independent option C is the correct answer. Next question, identify the operation performed by bit manipulating instruction of Boolean processor. तो कौन कौन से इनमें से दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होता है, कौन सा इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होता कॉम्प्लीमेंट. है? आप लोग ध्यान से देखो, आइडेंटिफाई द ऑपरेशन परफॉर्म बाय द बिट मैनिपुलेटिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ बुलियन प्रोसेसर. कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म होता है, डिवीजन परफॉर्म होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिक्रीमेंट एंड जंप होता है. तो कौन सा परफॉर्म होता है? अभी हम लोग इतने सारे इंस्ट्रक्शन देख रहे हैं तो उसमें से आपको क्लू मिल गया होगा कि कौन सा वाला इंस्ट्रक्शन देखे हम लोग ने. क्या हम लोग ने अभी डिवीजन से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन देखे, नो. मल्टीप्लिकेशन से देखे, नो. नहीं. डिक्रीमेंट करके कोई देखे कि वो नहीं. इंस्ट्रक्शन डिक्रीमेंट करता है? डिक्रीमेंट तो मेमोरी को करता है, सिंगल बिट को क्या डिक्रीमेंट करेगा? तो इट मींस ओनली वन ऑप्शन, कॉम्प्लीमेंट हो. कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट. यस, ठीक है, करेक्ट. ऑल ऑफ यू गेटिंग, बराबर समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes. तो कॉम्प्लीमेंट करके हम लोग ने इंस्ट्रक्शन देखे. तो ये है सब अंडरस्टैंडिंग टाइप के क्वेश्चन, यानी आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, उसको समझ पा रहे हो. लास्ट क्वेश्चन जो है, द पीक ऑन रजिस्टर कंसिस्ट ऑफ. अभी इसके ऊपर हम लोग गए नहीं, लेकिन इसने सेट 1 में क्वेश्चन दे दिया. अभी हम लोग तक पावर डाउन मोड में गए नहीं. चलो फिर भी कोई बात नहीं, मैं आपको क्लियर करा देता हूँ. अभी तक हम लोग इसमें गए नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट मैप को देख के आप समझ में आ गया होगा. द पीक ऑन रजिस्टर कंसिस्ट ऑफ पावर मोड बीट, पावर आइडल बीट, पावर आइडियल बीट, पावर डाउन बीट एंड आइडल बीट. तो पीक ऑन रजिस्टर जो है वो दोनों भी बीट को कंसिस्ट करेगा, क्योंकि दोनों भी मोड यूज होने वाला है. पावर डाउन मोड भी यूज होगा एंड आइडल मोड भी यूज होगा. तो दोनों भी बीट वहाँ पे मौजूद होगी पीक ऑन रजिस्टर में. अभी जो हम लोग नेक्स्ट देखने वाले, पावर डाउन मोडिंग देखने वाले, आइडल मोड भी देखने वाले, तो उनको सपोर्ट करने के लिए कौन सा रजिस्टर यूज होता है? पीक ऑन रजिस्टर. तो पीक ऑन रजिस्टर में आपको दोनों भी बिट नजर आएगा, पावर डाउन बिट भी नजर आएगा एंड आइडल बिट भी नजर आएगा. ओके, तो आपके सामने मैं ऑप्शंस को करेक्ट कर देता हूँ. आपके सामने जो करेक्ट ऑप्शंस है उसको क्लियर करा देता हूँ. तो पहले का आंसर आपका, फर्स्ट का आंसर सी इंडिपेंडेंट, सेकंड का आंसर आपका ए कॉम्प्लीमेंट एंड थर्ड का आंसर आपका डी पावर डाउन बिट एंड आइडल बिट. तो दिस इज द सेट 1 क्वेश्चन. तो ये सेट 1 क्वेश्चन था. नाउ फिर कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आप लोग का पावर सेविंग ऑप्शंस है, पावर सेविंग मोड्स का ऑप्शंस है. ये अभी हम लोग को क्लियर करना है, अंडरस्टैंड करना है. नाउ अभी माइक्रो कंट्रोलर 8051 में दो टाइप के पावर सेविंग ऑप्शंस है. एक आइडल मोड है और एक पावर डाउन मोड है. ये क्या मोड होता है उसका डिटेल डायग्राम अभी हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे. व्हाट इज मीन बाय आइडल मोड एंड व्हाट इज मीन बाय पावर डाउन मोड, और दोनों में क्या चीज़ का फर्क है. पहली बात तो पावर सेविंग का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय पावर सेविंग ऑप्शन. सो एज यू नो वेरी वेल, 8051 माइक्रो कंट्रोलर आपका क्या है, डिजिटल आईसी है, और उसको ऑपरेट करने के लिए हम लोग को क्या देना पड़ता है, वीसीसी सप्लाई देना पड़ता है. वीसीसी सप्लाई ऑफ +5 वोल्ट. ऑल ऑफ यू नो, हम लोग ने पिन नंबर 20 और पिन नंबर 40 देख चुके थे. पिन नंबर 40 आपका प्लस वीसीसी है और पिन नंबर 20 आपका क्या ग्राउंड है. इट मीन्स फॉर ऑपरेशन ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर इट रिक्वायर्स पावर सप्लाई. ठीक है, तो पावर सप्लाई देना ज़रूरी है, तब वो वर्क करेगा, ऑपरेट करेगा. लेकिन जब कोई ऐसा टाइम हो जहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर 8051 कोई ज़्यादा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहा है, कोई ज़्यादा टास्क परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर ऐसी सिचुएशन में पावर उसमें डाउन होना ज़रूरी है. पावर डाउन होना ज़रूरी क्यों है? अगर कंटिन्यूसली पावर ऑन रहेगा तो कंपोनेंट्स आपके क्या होंगे, हीट होंगे, वार्म अप होंगे. ठीक है, वार्म अप होंगे, हीट होंगे, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उसके कंपोनेंट्स में क्या होगा, वेरिएशंस होगा, उसके पैरामीटर्स में चेंजेस होगा, और फिर वो धीरे धीरे करके प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में जाएगा. तो पावर डाउन मोड या पावर सेविंग ऑप्शंस का होना ज़रूरी इसलिए है कि जब आपका माइक्रो कंट्रोलर कोई ऐसी आइडल सिचुएशन में हो जहाँ पे इतना कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर रहा हो, तो उस टाइम पे उसका पावर क्या होना चाहिए, कम हो जाना चाहिए, डाउन हो जाना चाहिए. जो एक्चुअल करंट सप्लाई है उस एक्चुअल करंट सप्लाई से उसका करंट सप्लाई क्या होना चाहिए, कम हो जाना चाहिए, सो डैट वो प्रॉपर टेम्परेचर में क्या होगा, रहेगा, कूल रहेगा, तो उसकी लाइफ क्या होगी, ज़्यादा होगी, द आईसी की लाइफ क्या होगी, ज़्यादा होगी. तो पावर सेविंग मोड का होना ज़रूरी क्यों है वो आगे चल के हम लोग देखेंगे, व्हाट इज़ द नीड ऑफ पावर सेविंग मोड. फिलहाल मैं आगे बढ़ रहा था, शुरुआत कर रहा था, उसका एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा था. तो पावर सेविंग मोड का मतलब ये होता है टू गेट इट डाउन द पावर रिक्वायर्ड बाय 8051 माइक्रो कंट्रोलर वेन एवर देर इज अ सिचुएशन इट डज नॉट रिक्वायर मच पावर, सो उसका पावर ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए. तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर में ऐसे पावर सेविंग करने के दो मोड्स है. एक का मोड है आइडल मोड, एक का नाम है पावर डाउन मोड.
तो दो तरीके से आप पावर सेविंग कर सकते हो, एक आइडल मोड से कर सकते हो और एक पावर डाउन मोड से कर सकते हो। और इन पर्टिकुलर मोड को सपोर्ट करने के लिए जो रजिस्टर यूज होता है, जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है, पीकॉन पावर कंट्रोल, जो हम लोग स्पेशल फंक्शन रजिस्टर ऐसे पार्ट्स पढ़े थे, जिसमें से एक नाम आपको पीकॉन भी आया था। मैं आपको बोला था हम लोग आगे चल के एक एक करके सबका डिटेल फॉर्मेट भी देखेंगे। जैसा जैसा वर्किंग होता जाएगा, जैसा जैसा टॉपिक आता जाएगा, आपके सामने वन बाय वन करके स्पेशल फंक्शन रजिस्टर भी सामने आते जाएंगे, उनका डिटेल में फॉर्मेट पढ़ेंगे हम लोग। तो अभी आज बात चल रही हमारी पावर सेविंग मोड की। तो पावर सेविंग मोड में कौन सा स्पेशल फंक्शन रजिस्टर यूज होता है? पीकॉन रजिस्टर यूज होता है। तो पीकॉन रजिस्टर इज नोन एज पावर कंट्रोल रजिस्टर। इट इज यूज फॉर कंट्रोलिंग द पावर मोड्स ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो माइक्रो कंट्रोलर की जो दो पावर मोड्स है, आइडल मोड और पावर डाउन मोड, उनको ऑपरेट करने के लिए, उनको एक्टिव बनाने के लिए ये पर्टिकुलर पीकॉन रजिस्टर यूज होता है। तो ये पीकॉन 8 बिट का रजिस्टर आपके सामने है, जिसमें से पहली बिट जो है, फर्स्ट बिट ऑफ पीकॉन रजिस्टर इज आइडल बिट, IDL। तो आइडल बिट स्टैंड फॉर दिस इज आइडल मोड बिट। तो ये बिट के ऊपर अगर आप सेट करोगे 1 दोगे तो पावर डाउन मोड में से कौन सा वाला मोड सेट होगा? आइडल मोड सेट होगा। दूसरा वाला जो बिट है वो कौन सा मोड है? PD। PD स्टैंड फॉर पावर डाउन मोड। तो माइक्रो कंट्रोल 8051 के दो पावर सेविंग मोड्स है, एक आइडल मोड है, एक पावर डाउन मोड है। तो आप इन दो बिट में से कौन सी बिट को सेट करते हो तो वो हिसाब से आपका वो मोड सेट होगा। If you give 1 to this bit, idle mode is going to be set. If you give 1 to this bit, power down mode को अगर आप 1 करोगे तो आपका पावर डाउन मोड सेट होगा, अनेबल होगा। बाकी दो बिट यहाँ पे जो GF0 है, GF1 है, वो जनरल पर्पस फ्लैग बिट 0, जनरल पर्पस फ्लैग बिट 1। तो ये सब यूजर डिफाइंड फ्लैग है, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। तो पीकॉन रजिस्टर में जो दो मेन इंपॉर्टेंट बिट्स है वो फर्स्ट टू बिट्स है, जो माइक्रो कंट्रोल 8051 के पावर सेविंग मोड्स के मोड्स को डिसाइड करते हैं। तो कौन से मोड्स में आपको जाना है, कौन से मोड में आपको सेट करना है, माइक्रो कंट्रोल 8051 को आपको कौन से मोड में रखना है। आइदर यू वांट टू कीप इट इन आइडल मोड, आइदर यू वांट टू कीप इट इन पावर डाउन मोड, यूज दिस पर्टिकुलर बिट्स ऑफ पीकॉन रजिस्टर एंड सेट द मोड। तो ये दो बिट जो है वो जनरल पर्पस फ्लैग बिट्स है, वो आप यूजर डिफाइंड फ्लैग बिट्स बोल सकते हो। बाकी की नेक्स्ट 3 बिट यहाँ पे कोई यूज नहीं होता है, इट इज अनयूज बिट्स। तो ये डोंट केयर वाली बिट्स है, जिसके ऊपर आपको बॉर्डर करने की जरूरत नहीं है। आइदर यू कैन गिव 0, आइदर यू कैन गिव 1, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, कोई लेना देना नहीं हमको इससे। लास्ट वाली जो बिट है एस मोड, ये वहाँ पे यूज होगा जब सीरियल कम्युनिकेशन की बात आएगी। तो पीकॉन रजिस्टर का दो जगह पे यूज होता है, एक पावर सेविंग मोड में यूज होता है और एक सीरियल कम्युनिकेशन में यूज होता है। तो ये जो अकेले की जो बिट दिख रही है ना, एस मोड, ये सीरियल मोड की बिट है। ये जब सीरियल कम्युनिकेशन यूज होता है तो वहाँ पे ये बिट का रोल प्ले होता है। तो ये वहाँ पे हम लोग देखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग को यहाँ पे पावर डाउन मोड और सेविंग आइडल मोड देखना है। तो ये पीकॉन रजिस्टर का ये फॉर्मेट था आपके सामने जो मैंने लेके आया। इस दो पर्टिकुलर फर्स्ट दो बिट्स आप इधर पे उसका मोड सेट कर सकते हो। अब आते हैं हम लोग पहला करके एक एक मोड करके अंडरस्टैंड करते हैं। सो फर्स्ट मोड इज व्हाट? आइडल मोड। तो आइडल मोड में क्या दिया हुआ है वो आप लोग पहले अंडरस्टैंड करो। उसके लिए एक डायग्राम आपको दिया हुआ है यहाँ पे। डायग्राम को मैं थोड़ा अच्छे से आपको समझाना चाहूँगा, क्लियर कराना चाहूँगा। सो दिस इज योर डायग्राम, जिसको मैं अच्छी तरीके से जूम करके आपको समझा रहा हूँ कि आपके पास जो दो मोड है, एक पावर डाउन मोड और एक आइडल मोड, तो क्या होता है और दोनों में क्या डिफरेंस है, वो ये डायग्राम हम लोग को अंडरस्टैंड करना है। जैसा कि आपको पता है, आप ऑसिलेटर यूज़ करते हो, क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज़ कर सकते हो करते हो, तो आप क्लॉक साइकिल्स को जनरेट करते हो। तो विद द हेल्प ऑफ दिस क्रिस्टल, जो आपकी दो पिन से XTL1 XTL2, तो ये दो पिन का यूज़ करके आप क्या यूज़ करते हो, क्या जनरेट करते हो? क्लॉक फ्रीक्वेंसीज को जनरेट करते हो। बिकॉज 8051 के आपकी डिजिटल आईसी है, और डिजिटल आईसी वो किसके ऊपर वर्क करती है? क्लॉक फ्रीक्वेंसी के ऊपर वर्क करती है। तो क्लॉक फ्रीक्वेंसी के ऊपर वर्क करती है, तो उसके लिए आपको ऑसिलेटर का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके सामने डायग्राम में ये जो ऑसिलेटर है, यहाँ से आपका क्लॉक पल्सेस जनरेट होता है और ये जा रहा है आपका एक नैंड गेट के इनपुट में। दूसरा नैंड गेट का इनपुट आपके पास कौन सा बिट है? PD, पावर डाउन, जिस इज कॉम्प्लीमेंटेड, जो कि कॉम्प्लीमेंट किया हुआ है। कॉम्प्लीमेंट किया हुआ है मतलब क्या? अगर जो बिट आप PD पे 1 दोगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट होके यहाँ पे क्या आएगा? 0। ओके, तो मतलब यहाँ पे ये हो गया कि एक मोड आपका PD मोड है, तो यहाँ पे PD मोड एक नैंड गेट के इनपुट में जा रहा है, और दूसरा आपका इनपुट जो है नैंड गेट को, वो ऑसिलेटर का आ रहा है, क्लॉक फ्रीक्वेंसी का आ रहा है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर बिट को 1 देंगे, तो 1 देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। 1 देंगे तो मामला गड़बड़ कैसा हो जाएगा? कोई मुझे बता सकता है?
वन देंगे तो मामला गड़बड़ इस तरीके से होगा। अगर पीडी बिट को वन करते हैं, पावर डाउन बोर्ड को वन करते हैं, तो वन करने से यहाँ पे इनपुट क्या बनेगा, जीरो बनेगा, क्योंकि आपने पीडी को वन किया तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जीरो। और नैंड गेट का अगर एक भी इनपुट जीरो होगा तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा, नैंड नैंड गेट का एक भी इनपुट जीरो हुआ तो आउटपुट क्या आएगा, इफ एनी वन बिट इज वन है, जीरो आउटपुट इज बिकम गोइंग टू बी वन। वन वन ओके, हाँ, तो आउटपुट वन हो जाएगा। तो आउटपुट वन हो जाएगा तो मतलब ये क्लॉक जनरेटर जा रहा है, आउटपुट जा रहा है। तो क्लॉक जनरेटर आपको कहाँ कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे दिया हुआ है, इसके आगे दिया हुआ है, सीरियल में दिया हुआ है, इंटरप्ट्स में मिलेगा, क्लॉक साइकिल, सीरियल पोर्ट्स पे मिलेगा, टाइमर को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ वहाँ पे मिलेगी, इंटरप्ट्स को भी क्लॉक मिलेगा, सीरियल पोर्ट को भी क्लॉक मिलेगा, टाइमर को भी क्लॉक मिलेगा। और ये क्लॉक नीचे भी जा रहा है, नीचे दूसरा नैंड गेट यूज हुआ है, इस नैंड गेट का क्लॉक जनरेटर से क्लॉक साइकिल्स इधर पे जा रहा है। और एक और मोड यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज आइडल मोड। तो दो मोड जो हम लोग पीडी और आइडल मोड का जो बात कर रहे हैं, उन दोनों में फर्क एक इस तरीके से है कि जब भी हम आइडल मोड को सेट करते हैं, तो आइडल मोड को सेट करने से आपका जो क्लॉक पल्स है वो रुक जाएगा, सीपीयू को खाली रुक जाएगा। बाकी क्लॉक पल्सेस किसको मिलता रहेगा, सारे चीज़ों को मिलता रहेगा, इंटरप्ट्स को मिलता रहेगा, सीरियल पोर्ट्स को मिलता रहेगा, टाइमर को मिलता रहेगा। यानी 8051 माइक्रो कंट्रोलर के जितने एडिशनल फीचर्स हैं, और एडिशनल फीचर्स वालों को क्लॉक पल्सेस मिलता रहेगा। सिर्फ आपका क्लॉक पल्सेस किसके लिए रुक जाएगा, सीपीयू के लिए रुक जाएगा। तो जब भी आप आइडल मोड में जाएंगे, तो आइडल मोड में मतलब आधा काम चालू रहेगा, आधा काम बंद रहेगा। यानी इधर पे पावर सेविंग थोड़ा कम होगी। पावर सेविंग थोड़ा कम क्यों होगी, पावर सेविंग थोड़ा कम क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे बाकी की जो फीचर्स वाली चीजें उनको सप्लाई जा रहा है, वो एक्टिवली वर्क है। सिर्फ बंद क्या हो रहा है, आपका सीपीयू बंद हो रहा है, सीपीयू को शांत कर दिया आपने, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को आपने क्लॉक पल्स देना बंद कर दिया। तो ये चीज़ कैसे हो रही है, ये चीज़ इस तरीके से हो रही है कि जब आप आइडल बिट को यहाँ पे वन दोगे, ये क्लॉक पल्स को वन दोगे, तो वन वन क्या हो जाएगा, अगर आइडल बिट को आपने वन दिया और ये वन क्लॉक पल्स यहाँ से वन आ रहा है, तो वन इंटू वन लॉजिकल एंड करेंगे तो वन होता है। लेकिन यहाँ पे नैंड नैंड लगा है, हुआ जीरो। है, जीरो हो जाएगा। तो आइडल बिट को वन करके ये सीपीयू बंद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज़ आपने पीडी को वन कर दी है, पीडी को वन कर दिए, पावर डाउन को वन कर दिए, तो पावर डाउन को वन किए तो क्रिस्टल का यहाँ पे वन था, यहाँ से सप्लाई जा रहा है, क्लॉक पल्सेस वन जा रहा है, तो ये वन वन होके मतलब आ गया वन, इनपुट वन, नैंड गेट का आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो। तो पीडी पीडी को अगर वन देंगे, सॉरी यहाँ पे मैं आपको कॉम्प्लीमेंट की बात बता रहा था, फॉरगेट दिस अबाउट कॉम्प्लीमेंट, ये नॉर्मल पीडी की बात चल रही। आप लोग वन दोगे तो ये वन ही रहेगा, इधर पे भी आइडल में वन दोगे तो वन ही रहेगा। तो ये वन देंगे और ये क्लॉक पल्सेस का वन, तो वन वन इनपुट लॉजिकल एंड क्या होता है वन, लेकिन वो बाहर क्या है, नैंड गेट, जीरो। तो नैंड गेट जीरो। तो क्लॉक जनरेटर यानी क्लॉक पल्सेस ही रुक जाएगा। तो जब भी आप पावर डाउन बोर्ड में वन दोगे, तो क्लॉक पल्सेस ना तो आपके इधर पे जाने वाला है, सीरियल पोर्ट इंटरप्ट टाइमर पे जाने वाला है, ना तो ये इस पे जाने वाला है, सीपीयू पे जाने वाला है, यानी सारा काम बंद। तो सबसे ज्यादा पावर सेविंग वाली बात जो है वो कौन से मोड में होगी, पावर डाउन मोड में होगी। क्यों, क्योंकि वहां पे सारी चीज स्टॉप हो जाएगी, ना तो क्लॉक पल्सेस इंटरप्ट को मिलेगा, सीरियल पोर्ट को मिलेगा, टाइमर को मिलेगा, ना तो सीपीयू को मिलेगा। लेकिन अगर सिर्फ आप आइडल मोड करते हो, तो आइडल मोड करने में क्या होता है, सिर्फ आपका सीपीयू का क्लॉक पल्सेस रुक जाएगा, बाकी सबका क्लॉक पल्सेस सप्लाई होता रहेगा। किसको किसको मिलता रहेगा, इंटरप्ट्स को मिलता रहेगा, सीरियल पोर्ट को मिलता रहेगा, टाइमर को मिलता रहेगा। बात समझ में आई। तो ये नैंड गेट का यूज करने से क्या होता है, नैंड गेट का आउटपुट कब जीरो होता है, जब भी दोनों इनपुट वन होंगे। और जब भी दोनों इनपुट वन होंगे तो नैंड गेट का आउटपुट क्या होगा, जीरो होगा। तो अगर आपने इधर ही पे दोनों इनपुट को वन कर दिया, पावर डाउन बोर्ड को वन कर दिया, तो इधर ही पे वन करके आउटपुट आपका जीरो बन जाएगा, मतलब आगे सप्लाई जाएगा ही, ना तो सीरियल को जाएगा, ना तो ये सीपीयू की तरफ जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ हम लोग आइडल बोर्ड को वन करते हैं, तो आइडल बोर्ड को वन करने की वजह से सिर्फ सीपीयू वाला जो टास्क है उसको क्लॉक पल्सेस बंद हो जाएगा, उसको सप्लाई नहीं मिलेगा, बाकी सबको एज इट इज मिलता रहेगा। तो कहने का मतलब ये था कि आइडल मोड में पावर सेविंग जो है वो कम होती है, किसको सप्लाई सिर्फ नहीं मिलता है, सीपीयू को सप्लाई नहीं मिलता है, बाकी सबको सप्लाई मिलता रहता है। तो आइडल मोड का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इट इज सिलेक्टेड बाय सेटिंग आइडियल बिट इन पीकॉन रजिस्टर। सबसे पहले तो आइडल मोड कहाँ से सेट होता है, जब आप पीकॉन रजिस्टर में आइडल बिट को सेट करोगे। और क्या होता है इन आइडल मोड, इन आइडल मोड द इंटरनल क्लॉक is gated off to CPU but not to interrupt timer and serial port function। बात समझ में क्या लिखा हुआ इधर पे, आइडल मोड में इंटरनल क्लॉक जो है, जो इंटरनल क्लॉक है वो ऑफ कर देते हैं, किसके लिए, सीपीयू के लिए, बट किसके लिए नहीं, इंटरप्ट के लिए नहीं, टाइमर के लिए नहीं, सीरियल पोर्ट के लिए नहीं। यानी इन सबको क्लॉक पल्सेस मिलता रहेगा, किसको किसको क्लॉक पल्सेस मिलता रहेगा,
इंटरप्ट को मिलता रहेगा, सीरियल पोर्ट को मिलता रहेगा, टाइमर ब्लॉक्स को मिलता रहेगा। खाली क्लॉक किसके लिए रुक जाएगा? सीपीयू के लिए रुक जाएगा। तो आइडल मोड में सिर्फ सीपीयू के लिए क्लॉक पल्सेस रुक जाएगा, बाकी सबको क्लॉक पल्सेस एज इट इज मिलता रहेगा। और इस चीज को आपको हटाना होगा तो कैसे हटाओगे? और यहाँ पे दिया हुआ है कौन कौन से रजिस्टर यहाँ पे दिया हुआ है। प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर, PSW, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, एक्यूमुलेटर एंड ऑल अदर रजिस्टर्स आर एंड पोर्ट पिन्स मेंटेन देयर डेटा ड्यूरिंग द आइडल मोड। तो आइडल मोड में जो भी रजिस्टर्स है, एक्यूमुलेटर हो गया, स्टैक पॉइंटर हो गया, प्रोग्राम काउंटर हो गया और बाकी के जितने भी रजिस्टर है वो सब की सब अपना डेटा मेंटेन रखेंगे, एज इट इज वैसी मेंटेन रखेंगे। सिर्फ सीपीयू को क्लॉक पल्सेस रुक गया है, बाकी सबका डेटा एज इट इज मेंटेन होने वाला है, कुछ डेटा हटने वाला नहीं है। अगर आपको आइडल मोड से बाहर आना है तो कैसे आ सकते हो? बाहर आना है तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? एक्टिवेशन ऑफ एनी एनेबल इंटरप्ट्स, या तो आपको कोई इंटरप्ट्स से एनेबल करके उसको आना पड़ेगा, या हार्डवेयर रिसेट। हम लोग ने हार्डवेयर रिसेट देख चुके हैं। माइक्रो कंट्रोलर 8051 की कौन सी पिन है जो रिसेट करती है? पिन नंबर 9। पिन नंबर 9 पे हम लोग ने रिसेट सर्किट लगा के रखे ना, तो वहां से आप रिसेट करोगे तो आप इस तरीके से आइडल मोड से बाहर आ जाओगे। तो अगर आइडल मोड से आपको बाहर आना है, आपने पिन नंबर 1 पे दे दिए थे, टीकॉन की पर्टिकुलर 0 बिट पे 1 देके आपने आइडल मोड में एंटर किया, लेकिन अब उस से बाहर आना है, तो बाहर कैसे आओगे? तो आपको बाहर से रिसेट करना पड़ेगा। तो माइक्रो कंट्रोलर 8051 की जो रिसेट वाली पिन है वहां से आप रिसेट करो तो इस मोड से बाहर आ जाओगे। तो ये आइडल मोड की बात थी। नेक्स्ट आपको जाना है किस पे? पावर डाउन मोड में। तो पावर डाउन मोड का भी यही डायग्राम है। मैंने आपको खाली क्या समझाया था, पीडी मोड पे अगर आप 1 दोगे तो पीडी मोड पे 1 देंगे तो ये पहले जो फर्स्ट नैंड गेट का आउटपुट है वो क्या हो जाएगा? 0। तो फर्स्ट नैंड गेट का आउटपुट 0 हो गया तो मतलब ना तो क्लॉक पल्सेस आपको इंटरप्ट्स को दिया जा रहा है, ना तो सीपीयू को मिलने वाला है। तो दोनों भी चीज़ क्या हो जाएगी? पूरा बंद हो जाएगा। तो पावर डाउन मोड क्या है? इट इज सिलेक्टेड बाय सेटिंग पीडी बिट इन पीकॉन रजिस्टर। पहली बात तो आप पीडी बिट को सेट करोगे पीकॉन रजिस्टर में तो ये सेट होगा, पावर डाउन मोड अनेबल होगा। इन पावर डाउन मोड द ऑन चिप ऑसिलेटर इज स्टॉप। सीधा इसने क्या बोल दिया, जो ऑन चिप ऑसिलेटर है, जो माइक्रो कंट्रोलर का ऑन चिप ऑसिलेटर है, वही क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। ऑल फंक्शंस आर स्टॉप, सारे फंक्शंस क्या हो जाएंगे? स्टॉप हो जाएंगे। कंटेंट्स ऑफ ऑन चिप रैम एंड एसएफआर आर मेंटेन। सिर्फ जो ऑन चिप रैम और एसएफआर है उसके कंटेंट मेंटेन रहेंगे, वो कुछ नहीं उड़ेगा। पोर्ट पिन्स आउटपुट द वैल्यूज दे हैव देयर रिस्पेक्टिव एसएफआर्स। और जितने भी आउटपुट वगैरह है वो सब मेंटेन रहेंगे, जो भी रजिस्टर में जो है वो मेंटेन रहेगा। खाली आपने ऑन चिप ऑसिलेटर सप्लाई सबका रोक दिया तो सारी चीज फंक्शन करना बंद कर देगी, लेकिन जो डेटा है वो एज इट इज मेंटेन रहेगा, वो हटेगा नहीं। ALE and PSEN are held low. In this mode, VCC can be reduced as low 2 volts. तो समझ में आया ये पावर सेविंग मोड क्यों मतलब जरूरी है? तो अगर आप ऑन चिप ऑसिलेटर को रोक दोगे तो फिर आपको सिर्फ कितना सप्लाई की रिड्यूस हो जाएगा? सप्लाई कितना तक रिड्यूस हो जाएगा? 2 वोल्ट तक। नॉर्मली आपको ऑपरेट करने के लिए VCC कितना देना पड़ता है? 5 वोल्ट। तो अब ये कितने वोल्ट पे आप रिड्यूस हो जाएगा? 2 वोल्ट पे रिड्यूस हो जाएगा, 2 वोल्ट पे चले जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो? पावर सेविंग कर रहे हो ना, पावर का रिडक्शन कर दिया। नॉर्मली 5 वोल्ट लगता है आपको ऑपरेट करने के लिए, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर इतना यूज नहीं हो रहा है तो अननेसेसरी 5 वोल्ट सप्लाई क्यों देना है? तो वो सिचुएशन में आप पावर डाउन मोड में जाएंगे तो पावर डाउन मोड में आपका ऑसिलेटर ऑन चिप सप्लाई रुक जाएगा, और उस केस में आपका जो VCC का सप्लाई है वो कितने वोल्ट तक चला जाएगा? 2 वोल्ट तक चला जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो? पावर सेविंग कर रहे हो। जो पावर 5 वोल्ट का चाहिए था तो आप 2 वोल्ट पे कर रहे हो, तो आपका सारे कंपोनेंट्स भी कूल रहेंगे, मेंटेन रहेगा, टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, कोई एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं रहेगा, तो लाइफ बढ़ जाएगी। टर्मिनेशन फ्रॉम पावर डाउन मोड, तो पावर डाउन मोड से आप कैसे टर्मिनेट हो सकते हो? इसका सिर्फ एक ही ऑप्शन है, हार्डवेयर रीसेट। तो जो पिन नंबर 9 है उसको रीसेट करो, तो हार्डवेयर रीसेट करके आप रीसेट कर लोगे। तो दिस इज इट, ये आपका था। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मेंटेन दिस डायग्राम। ये पावर सेविंग मोड का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ऑन चिप ऑसिलेटर सप्लाई वो है, पहला नैंड गेट है, दूसरा नैंड गेट है। तो पहला नैंड गेट जब आपका आउटपुट 0 हो जाएगा तो मतलब सारा क्लॉक पल्सेस रुक गया, ना तो इंटरप्ट सीरियल पोर्ट टाइमर को मिलेगा, ना तो सीपीयू को मिलेगा। लेकिन सिर्फ नैंड गेट 2 का आउटपुट 0 होता है आइडल मोड बिट को 1 करने से, तो वो सिर्फ ऑन चिप ऑसिलेटर सप्लाई सीपीयू के लिए रोकते हैं, बाकी सबके लिए एज इट इज मिलता रहेगा, ऊपर से आपको डायरेक्ट मिलता रहेगा। तो ऑन चिप ऑसिलेटर सप्लाई इंटरप्ट सीरियल पोर्ट टाइमर्स को मिल रहा है, सिर्फ किसके लिए रोक दिया गया है? सीपीयू के लिए। कौन से मोड में? आइडल मोड में। और पावर डाउन मोड में दोनों के लिए, यानी पूरा ऑन चिप ऑसिलेटर सप्लाई बंद कर देते हैं, रोक देते हैं।
तो वो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से। नाउ द क्वेश्चन नाउ द टाइम इज टू अटेम्प्ट एमसीक्यू सेट 2। एमसीक्यू सेट 2 हम लोग को अटेंड करना है, उसके लिए पहले मैं बंद कर दूं, रहने देता हूँ, चलो ठीक है, आपके ऊपर भरोसा कर लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, द ऑन चिप ऑसिलेटर इज स्टॉप इन। तो ऑन चिप ऑसिलेटर स्टॉप कौन से केस में होगा? पावर मोड, पावर डाउन मोड। वेरी गुड, पावर डाउन मोड। ये पावर मोड मत बोल देना, पावर डाउन मोड है, तो कंफ्यूज करने के लिए सब ऑप्शन ऐसे दिए हुए होते हैं। सो पावर डाउन मोड ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, द माइक्रो कंट्रोलर एंटर्स पावर डाउन मोड विथ व्हेन। माइक्रो कंट्रोलर एंटर्स पावर डाउन मोड कब एंटर करेगा? जब एस मोड बीट ऑफ पीक ऑन इज सेट, GF1 बीट ऑफ पीक ऑन इज सेट, PD बीट ऑफ पीक ऑन इज सेट, या GF2 बीट ऑफ पीक ऑन इज सेट। तो नाम से ही मालूम पड़ता है पावर डाउन मोड के लिए PD बीट यूज होती है। तो ऑप्शन सी। तो PD बीट ऑफ पीक ऑन अगर सेट करोगे तो माइक्रो कंट्रोलर कौन से मोड में एंटर होगा? पावर डाउन मोड में एंटर होगा। लास्ट क्वेश्चन, द सिग्नल डेट ओनली पुल्स द माइक्रो कंट्रोलर 8051 आउट ऑफ द पावर डाउन मोड इज। वो कौन सा इंस्ट्रक्शन है जो माइक्रो कंट्रोलर का यूज होगा आपके पावर डाउन मोड से बाहर आने के लिए? पावर डाउन मोड से बाहर आने के लिए कौन सा होने वाला है? रीसेट, हार्डवेयर रीसेट। हार्डवेयर रीसेट, वेरी गुड। ना तो क्लियर है, ना तो लीव है, ना तो एग्जिट, ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। सिर्फ आप माइक्रो कंट्रोलर का ये रीसेट वाला इंस्ट्रक्शन ही यूज करोगे, सिग्नल यूज करोगे। सिग्नल की बात कर रहा है, वो कौन सा सिग्नल है? तो रीसेट पिन पे रीसेट वाला सिग्नल देंगे तभी वो पावर डाउन मोड से बाहर आएगा, हार्डवेयर रीसेट। तो एक ही ऑप्शन है पावर डाउन मोड से बाहर आने के लिए, आपको हार्डवेयर रीसेट करना पड़ेगा, यानी बाहर की जो हार्डवेयर की जो रीसेट पिन है वहाँ पे आपको हाई देना पड़ेगा, तब जाके ये आपका माइक्रो कंट्रोलर उस मोड से बाहर आएगा। रीसेट मतलब सारी चीज रीसेट हो जाती है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज इस तरीके से क्लियर हुई होगी। फिर भी आपको कुछ डाउट होगा तो कुछ रहेगा तो पूछना। लास्ट यहाँ पे नीड ऑफ पावर सेविंग मोड था, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था। इट कैन पुट मोर फंक्शनलिटी इनटू स्मॉलर स्पेस ऑन आईसी, allow use of smaller and lighter power supply and less heat being generation allows denser packaging of circuit components। तो जैसा ही आप पावर का रिड्यूस करोगे, सप्लाई का रिड्यूस करोगे, तो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, कंपोनेंट्स कूल रहेंगे, लाइफ उनकी क्या हो जाएगी, कंपोनेंट्स की बढ़ जाएगी। कूलर चिप्स आर मोस्ट रिलायबल एज रैंडम एंड वेयर आउट फेलियर्स रिलेट टू हाई टेम्परेचर। तो जो जितने भी कूलर चिप्स है, नॉर्मल टेम्परेचर वाली चिप्स है, वो उनका जो अंदर का जो कंपोनेंट्स है उनकी लाइफ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो फेलियर का रेट कम हो जाता है। तो हाई टेम्परेचर से फेलियर का रेट बढ़ता है, और नॉर्मल टेम्परेचर, कूल टेम्परेचर से फेलियर का रेट कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ एडवांटेजेस थे, फायदे थे पावर सेविंग मोड के। तो आज का समरी क्या है? व्हाट इज द समरी ऑफ टुडेस लेक्चर? बुलियन प्रोसेसर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ 8051 आर्किटेक्चर। पहले हम लोग ने बुलियन प्रोसेसर के बारे में अंडरस्टैंड किए, फिर इसके बाद हम लोग ने नेक्स्ट सेक्शन जो देखे वो 8051 के दो मोड्स देखे पावर सेविंग के, एक आइडल मोड और एक पावर डाउन मोड। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको कुछ डाउट है, कुछ रहेगा नहीं समझ में आया, तो कमेंट करो, मैसेज करो, डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन यू वंस अगेन। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।